Now present continuous has a role for continued actions. Okay, apart from that, you talk about general happenings in the world. Or general happening with you. For example, if I talk about continued action for right now period, it's like I am typing. Okay, general happenings, cases are surging. Okay, and third, I am studying grammar. So हो सकता है, I mean, at any point of time, if I ask you that, what are you doing? So maybe you are checking phone at that point of time, but in general, you are studying grammar, okay? Or you are researching about grammar, or you are finding doubts about grammar, okay? So this is something general with you happening in your life, and this is happening in the world, and this is right now wala action. Ma'am, cases are surging. Yeah. So ये वही है ना, we are talking about the current time जो continuously चल रहा है हमारा. Yes, yes. And Yes. cases are actually surging. Yes. आज 4,13,000 something cases आए हैं. Even I was watching a while ago. मैं वैसे इनको ज्यादा देखती नहीं हूँ. I really get demotivated. Not demotivated, but मुझे देखना ही अच्छा नहीं लगता. And my husband keeps playing it every now and then. न्यूज़ पे तो मैंने बंद कर रखा है, बट जब मैं न्यूज़ पेपर लगवा रखा है मेरा, उसमें सबसे पहले यही दिखता है. हाँ, तो दिखेगा यही. चलिए बंद कर दिया हम आर्टिकल रीड करना ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कोविड के सब कुछ यही चीज चल रहा है. मैंने कहा बहुत नेगेटिव हो रहा है, मुझे नहीं पढ़ना. और लेकिन आज बहुत से टेक्नोलॉजी का आया ना. आज बहुत से टेक्नोलॉजी का है. इंडिया में 5G का अप्रूवल मिलके ट्रायल के लिए 6 कंपनीज को. अच्छा, गुड. So in general in your life also, when we talk about I am studying grammar, so it's like also novel. अगर आपकी novel कोई चल रही है right now, अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, but yes, in general you are studying that, you can see that yes, these days I'm reading a novel. So इसको these days से support कर सकते हैं. फिर आता है हमारा quickly present perfect. इसके अंदर एक बारी मैं वो लिखता हूँ, syntax subject plus B form again will be here with V1 and ing plus object. Now, when you talk about present perfect, it refers to the bygone actions as I referred earlier also, something which has recently started or completed. So I have switched on my mobile. This is what a recent action is. Or I have just taken a lecture on grammar. Okay, so one is hinting towards the started action and a finished action. And the syntax would be with verbs third form. Only perfects are the only category which takes verbs third form. अच्छा, हम एक चीज बताओ, जैसे कि हो गया I drink water early morning, ये हमारा उसका था सिंपल प्रेजेंट का था जी. तो इसको जैसे होता है I am drinking water early morning, तो ये सही होगा. I'm drinking water. हाँ, in case people would ask you, what are you doing these days to keep yourself healthy? I'm drinking. Supposedly the dietitian is asking me, how's your morning routine? So I can answer that I'm drinking water early morning. So आपकी वो जनरल उसमें आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो थर्ड पार्ट हमने रेफर करा है. Generally you are involved in. ठीक है. मतलब अगर हम जैसे इसको थोड़ा सा अगर हम बाइफरकेट करना है, जैसे प्रेजेंट हमने करा था, हमारी एक रूटीन है वो वाला, हैबिट, रूटीन, सारी चीज के लिए. तो इट्स लाइक अगर हम इसको और उससे बाइफरकेट करना है तो इट्स जस्ट स्टार्टेड, मतलब कैसे करेंगे?
जैसे it's also a routine कि मैं रोज I'm drinking water every day kind of, मतलब वो सारी चीजें वो भी मेरी रूटीन बन चुकी है. उसको हम प्रेजेंट में और कंटिन्यूस मतलब कैसे बाइफरकेट करेंगे? very thin line difference. See, they both are directing towards the same thing, ठीक है, but focus change हो जाता है. हो सकता है अगर आपसे कोई आपका daily routine पूछे, so you would say that I get up early in the morning and I drink water. Simply आपने बोल दिया. But on the other hand, if I'm generally asking you, what are you doing to keep yourself healthy? So drinking water is one of the parts, और उसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं. तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट द वे ऑफ सेइंग थिंग्स, नथिंग एल्स. क्योंकि ये भी आपकी जनरल एक्टिविटीज ही चल रही हैं जो आपका रूटीन का पार्ट बना हुआ है. तो जस्ट अ वे ऑफ सेइंग, नॉट सच बिग डिफरेंस. मतलब it's all depending on the usage, कहाँ पर क्या. Yes, 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 yes. Okay, works. ठीक है. Okay, now this was for present perfect for recent actions. और ये याद जरूर रखना, बहुत से लोग स्पोकन में गड़बड़ करते हैं, एट टाइम्स मैं भी कर जाती हूँ, बट देन आई अगेन रिमेंबर दिस रूल, तो मैं वापस आती हूँ. एंड द पीपल से दैट आई हैव टेकन, मे बी आई हैव लर्नड इंग्लिश yesterday. So कोई गड़बड़ नहीं दिखती है इसके अंदर, because everything is fine in this sentence, but if you would look into nitty-gritties, yesterday is not the word meant for present perfect. The words which are meant for present perfect, पहले इसको अलग करते हैं, एक मिनट. Yesterday is not the recent past. Yes, it's not the recent past. So recent past, सिर्फ it's all about word terminologies now. Understand this. So recently, yesterday भी हो सकता है, but हमें words चाहिए. अगर मुझे word दिख जाता है recently, तो I will give it a green signal कि I have appeared in exam recently. चाहे वो कल ही क्यों ना हुआ हो, but मुझे word चाहिए recently. I cannot digest yesterday, in present perfect. So I have done it recently, या फिर just now, या फिर yet, ये वाले words चलेंगे. Recently, just now, yet and already. हम इसको बोलते हैं sign words for present perfect. ठीक है. ये basically मतलब it's all about the वो timeline thing. अगर yesterday recently करे, मुझे timeline 3 महीने की मिली हुई है, जब मैंने 2 दिन पहले करा, तो I would be saying I have completed assignment recently. Recently, yes. 2 दिन में करी है. अगर मुझे time ही 3 दिन का मिला और मैंने 3 दिन में ही कर दी थी पहले, मतलब first day ही कर दी थी, then it won't count. मतलब it's all about जो जितना हमारा timeline कम है, उसकी percentage छोटी होनी चाहिए. Yes. So that would work. एंड स्पेसिफिकली ये 4 वर्ड्स हैं. ये दिख रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये नहीं दिख रहे हैं स्पोकन वाइज आपको ठीक लगेगा. मेनी टीचर्स आल्सो स्टिल डू द सेम मिस्टेक. मेनी पीपल आर डूइंग दिस यस्टरडे वाला कॉन्सेप्ट इन स्पोकन, बट जब पढ़ने पर आते हैं रिसेंटली होल्ड्स ट्रूथ फॉर प्रेजेंट. जैसे आई हैवंट लर्नड इंग्लिश येट, मतलब मैंने अभी तक नहीं पढ़ी. ऑलरेडी मैम आई हैव ऑलरेडी डन ऑल द रूल्स. तो इट्स ये वो स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा, जैसे अभी जैसे नियरली हुआ, आई हैव ऑलरेडी डन द रूल्स. इसको ये रेपिटेशन के लिए लगता है. फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट? नो, आई हैव ऑलरेडी हैड इट. ठीक है. सो ये रेपिटेशन के केस में आ जाता है. तो मतलब वो रूल्स वाला हो गया सारी चीज के लिए. मतलब डू यू नो द रूल्स और डू आई नीड टू टेल यू? आई हैव ऑलरेडी डन द रूल्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग. मतलब ठीक है, उसकी मतलब रीसेंट बात हुई है एंड देन आई स्पेसिफिक, आई हैव ऑलरेडी डन दैट समथिंग काइंड ऑफ चीज हो गया. करेक्ट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट विंडो, प्रेजेंट परफेक्ट पे थे हम, अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. So the actions which let me draw the timeline here. Oh, very bad.
Okay, so it refers to those actions which which were started in past, but they are still continuing. A recent action in the past, so perfect wala, ठीक है, continuing, and it will keep going on in future also. Like our class, current time. Yes, so टाइम में बनाई है ना? हाँ जी, उसी की टाइम में बनाई है ना आपने? हाँ. So it could be, we have been studying English for 45 minutes. Okay, and it will still continue. Okay, so an action which has become perfect for a certain time period. So for 45 minutes, the action has got perfectly finished. फिर हम continuous क्यों लगा रहे हैं? Because वो अभी भी चल रहा है, and it would go until future also. And can we say जैसे timeline के हमारे जो end points है, तो उसके बीच का कुछ भी आएगा, तो that is present perfect continuous. बीच का नहीं, बीच वाला पार्ट है फुल्ली कंटिन्यूअस ना. एक तो टाइमलाइन पास भी तो हुई है. ये वाला जो एरिया है 12 to 12:40 या 43 वाला, ये तो पास हो गया. इसमें जो हमारा एक्शन हुआ है वो परफेक्ट बन चुका है अंटिल दिस टाइम पीरियड, और अभी जो हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू होगा, वो आगे कंटिन्यू होगा या अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. सो यू कैन नॉट ओनली टेक दिस एज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सम एक्शन व्हिच हैज गॉन, व्हिच हैज रिसेंटली गॉट पास्ट, इसीलिए परफेक्ट का एलिमेंट आ रहा है क्योंकि ये रिसेंटली पास हुआ है. कॉन्टिन्यूअस का क्यों आ रहा है? बिकॉज इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन, एंड दैट्स व्हाई दोनों फीचर हमारे लैंग्वेज के अंदर है. इफ यू वुड नोटिस दिस एक्यूरेटली, तो हैव जो है परफेक्ट की वजह से आया है और आईएनजी कॉन्टिन्यूअस की वजह से आया है. और बिकॉज ये चीज अभी भी चल रही है एंड इट विल बी डिटर्मिन्ड इन द फ्यूचर ऑल्सो, दैट्स व्हाई बीन इज इन देयर. तो ये तीन चीजें इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई हैं. बाकी अपनी समझ के लिए व्हाटएवर आइडिया हिट्स यू, दैट वुड बी परफेक्ट. और इसके अंदर टाइम देना जरूरी है कि कितने मिनट के लिए वो काम परफेक्ट हुआ है. सो वी आर यूजिंग फॉर दैट. और फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आता है. फॉर इज फॉर द ड्यूरेशन, नंबर्स. आई थिंक हमने ये भी पहले करा था. और अगर हम लोग फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम पीरियड कर रहे हैं, लाइक शी हैज बीन टीचिंग since morning. हाँ, या हम स्पेसिफिक टाइम दे दें 11 AM, ठीक है, या मंडे, एनीथिंग. तो मींस अभी तक भी वो पढ़ा रही है. यस, ठीक है. द प्रोसेस इज इन कंटिन्यूएशन. ठीक है, वर्क्स. ठीक है. So this was for present perfect continuous, and now we will follow the same guidelines as simple present did. तो उसी में simple past आ जाएगा, which is the only tense to have verbs second form. No other tense will take verb second form. Okay, and मतलब सारे tense खाली past की बात कर रहे हैं या every tense? सिर्फ simple tense, simple past tense. ओके, यही वो एक टेंस है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म उठाएगा. बाकी सारे टेंस, 11 टेंसेस जो हैं इनके अलावा, वो वर्ब फर्स्ट और थर्ड के बीच में ही टॉगल करेंगे. ठीक है. तो मैम इसको कर देना, ओनली ही टेक्स. हाँ, यही लिख रही हूँ. मैम टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ स्पोकन इंग्लिश, राइट? ऐसा कुछ है? यस, फॉर स्पोकन, फॉर रिटन, बोथ. क्योंकि इसी से तो सेंटेंसेस बन रहे हैं. वी आर ट्रैवलिंग इन टाइम, और यही नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. जिनको शॉर्ट टर्म इंग्लिश वो बोलने का कोर्स करना है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट थिंग इज टेंसेस. यू गो विद टेंसेस. हाँ, ट्रेडिशनल आइडिया तो यही था कि सब टेंसेस से स्टार्ट करते हैं, बट अब सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. सो अब जो मेरे कैप्सूल कोर्सेज हैं उसके अंदर तो आई हैव टू गिव एवरीथिंग, चाहे वो महीने भर का हो या 5 days का हो, तो यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू पीपल ताकि फ्लुएंसी लगे. तो यस, एक लेवल पे टेंसेस कराने बहुत जरूरी हैं, बट उसके साथ देयर आर 2-3 कपल ऑफ थिंग्स लाइक एडवर्ब्स देने बहुत जरूरी है, और एडजेक्टिव्स. ये तीन चीजें अगर हो जाती हैं किसी के पास भी अच्छे से, so the person can speak very nicely, fluently, I would say. And then we have, अच्छा, इसके अंदर साइन वर्ड्स हमारे थे yesterday.
या फिर लास्ट के साथ कुछ भी आ जाए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये साइन वर्ड्स इसके हैं। फिर आता है सिंपल, नो नो नॉट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हम सिंपल पास्ट का एग्जांपल दे दें। Just a second. So I swam yesterday. ठीक है, so subject we do. Simply अगर कोई object नहीं है, this is intransitive. You can simply say अगर आपको चाहिए, so I sew a cardigan there. Yesterday वगैरह स्पेसिफाई करने की जरूरत है? ग्रामेटिकली कर दो, स्पोकन में तो नहीं जरूरत। ठीक है, आप अदर डे भी लिख सकते हो, दी अदर डे। जब आपको डे का नाम याद नहीं आता ना, किस दिन करा है, तो यू कैन यूज दी अदर डे आल्सो। अच्छा, द अदर डे नॉर्मली वही था सीरीज में, आई हैव सीन द अदर डे वी वर टॉकिंग अबाउट इट। तो हाँ, मतलब तो जब आपको दिन याद नहीं है तो आप उसको अदर डे कर देते हो। ठीक है, मतलब हम पहले कभी बात कर रहे थे, हाँ, कभी पहले हुई थी, यस। ठीक है, बहुत बार यूज होता है मैम ये सारी चीज का, अदर डे। I saw this guy the other day, he was this. Right. ठीक है, समझ आया ये वाला? और इसके other day is also recent past या लंबा भी यूज कर सकते हैं? हम लोग देखो, as far as we can recall, तो other day it could be a matter of yesterday also, और it could be matter of a longer past also. दोनों चीजें हो सकती है। फिर से वही फाइन ट्यूनिंग का गेम है यहाँ पे। इफ यू आर यूजिंग वर्ड रिसेंटली, चाहे वो आपने वर्ड रिसेंटली ही डिस्कस किया हो, बट अगर उसके अंदर आप वर्ड नहीं लगा रहे तो वो हैज हैव नहीं लेगा। अदर डे इट्स लाइक इट विल टेक सिंपल पास्ट, सो जस्ट द रोल ऑफ वर्ड्स, नथिंग एल्स। ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोग आई मीन पर्सनालिटीज दे सकते हैं। शी वॉज अ प्रोफेसर, or she was a nurse, kind of thing. So biological and professional identities can be given. Present past continuous में it would be again same, be आ जाएगा, but was verb की form में। She was watching on snacks the other day. ठीक है, is it making sense, Akshay? Yes. ठीक है, let's move to the next page. Past perfect, so it will use subject plus had plus V3 plus object. Refer to the long past. So she had witnessed a crime scene. Versus he witnessed so it is like long years back, maybe 10-12 years back, or maybe in childhood the person might have witnessed. Yeah, we talked about it. Had is very मतलब बहुत पीछे वाला past हो गया, was हम use करते हैं recent past के लिए। Yes, so it could be like 1 or 2 days ago also, or it could be 10 days ago also, or 1 year ago also, right? Past perfect continuous. She witnessed the crime scene, it's simple past हो गया ना? हाँ जी। अच्छा, और जैसे कि हम ये यूज करते हैं, जैसे सोनीपत
had conquered by something, had been conquered. तो मैम अगर had been conquered तो उसमें आ जाएगा ना ये वाला passive किसमें passive sentence formation. नहीं एक्टिव पैसिव हटा दे, अगर हम ये टेंस में जिसमें आएगा had been conquered तो उसमें आ जाएगा ना वाला ये past perfect continuous past perfect. ना वही मैं बोल रही हूँ. अगर आप बोल रहे हो she had सोनीपत had been conquered तो it is a passive formation. ठीक है. और अगर उसको आपको टेंस बनाना है, एक्टिव बनाना है, तो it would be like XYZ had conquered सोनीपत in dash year. तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अभी एक्टिव पैसिव आएगा ना हमारा ये? हाँ बिल्कुल आएगा. जो टेंसेस कर रहे हो ना इस ये एक्टिव है और पैसिव फिर इसके बाद हम लोग ले लेंगे. मैं पता है जितना मुझे एक्टिव पैसिव आता है ना मेरे को घुमाना याद था बस, जो हमने बचपन में करा है. सभी यही करते हैं. कोई बात नहीं, अब उसका मीनिंग भी समझ आ जाएगा. Last is simple future. तो इसके अंदर पुराने टाइम में shall भी यूज होता था, आजकल बहुत कम यूज हो जाती है इसकी. He और she के shall आता था ना, ऐसा समथिंग था ना. आई के साथ हमेशा shall बोलते थे, बट अब वो किसी के साथ भी लग जाता है. रीजन अब ये हो गया है कि shall जो है इट्स लाइक लेस लाइक्लीहुड of happening of an event, and will is like more of a surety. अभी सभी के साथ यूज हो जाता है. जैसे I shall come तो थोड़ा wavering सा लग रहा है. I might or might not come. I will come. Will तो is like a strong feeling. I will come. Yes. Future continuous subject plus again will shall plus be plus v1 plus ing plus object. So I'll be waiting for you. So that is for surety, right? Then अच्छा एक और इसमें डिफरेंस है. I will be waiting for you versus I will wait for you. ये तो simple future हो गया ना. I will wait for you. Yes. So it's like it's sure that I'll wait for you, but here I'll be waiting for you. दोनों आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो स्पोकन में. ग्रामेटिकली यहाँ पर सिर्फ ना टाइम फोकस आ जाएगा. I'll be waiting for you at certain place around this time. So टाइम फोकस हो जाता है इसके अंदर. ठीक है. So like I'll be taking class at 3 tomorrow. Again time specific. Save this page. Next. Future perfect. अब ये थोड़ा सा ना यूटोपियन सा हो जाता है. Future perfect, utopian कह लो या I mean very unlikely usage of sentences is being made here. या usage भी इनकी कम ही होती है अगर हम normal English भी पढ़े तो. So like इसके अंदर होता है by that time, उस समय तक. या so I will have completed half of my syllabus. So we are future dependent actually. So it is like subject plus will have plus V3 plus object. Okay. So it's like जब तक मम्मी पापा आएंगे, by that time I will have completed half of my syllabus. And then future perfect continuous.
then यहाँ पे भी since 4 आ जाता है. Like I will have been taking classes by the time so you will specify the time duration कि इतने समय तक ये काम तब तक चल रहा होगा. फ्यूचर का we are giving a forecast वो kind of thing होगी. Yes, future is always a forecasting thing, but ये बात भी सही है. लास्ट ये दो हैं, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट, ये बहुत ही कम यूज होता है और बहुत कम आता भी है, बट स्टिल वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सिंटेक्स इसका बस मेजर पॉइंट है कि क्या करना है सिंटेक्स के साथ, ये ठीक हो जाना चाहिए. अदरवाइज इसमें ज्यादा चैलेंजेस आते नहीं हैं इन तरीके के क्वेश्चंस में. जस्ट रिमेंबर फॉर. हाँ जी, बोलते भी है सर, I will have been taking classes free.